اسی طرح شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں محفل پاک سے جاتے ہیں اور درود پاک کی محفل ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، نیکی کی دعوت عام ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھی بات سیکھ کر چلا جاتا ہے، اس سے بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور ثواب جاریہ کا حقدار وہ بندہ ہوتا ہے جس نے محفل سجائی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذریعے محفل سجی نا، عثمان بھائی کے ذریعے۔ اب جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا نا۔ جو یہاں سے جو بھی باتیں ہوں گی سیکھ کر جائیں گے، عمل کریں گے، ثواب کے حقدار یہ بھی ٹھہریں گے۔ تو یوں ہمیں ان محافل کا انعقاد کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا ہی چاہیے۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں ماشاءاللہ عثمان بھائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سجائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس محفل پاک کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ نکاح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نکاح جو ہے یہ فطرت میں سے ہے، اور نکاح تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا ہے، یعنی تمام انبیاء کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ انہوں نے نکاح فرمائے ہیں، ایک سے زائد بھی فرمائے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان بھی قرار دیا ہے۔ جس کا نکاح ہو جاتا ہے وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اگر نکاح اس وقت میں کر دیا جائے کہ جب لڑکا اور لڑکی بلوغ کو پہنچتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، اور اس چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جب انہی ایام میں نکاح کر دیے جائیں تو پھر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ میں اشارتاً بات کروں گا، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کس گناہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو بہت سارے گناہوں سے بندہ بچ جاتا، بد نگاہی سے، بد کلامی سے، بد سماعی سے، اور بد فعلی وغیرہ بہت سارے کاموں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ٹال مٹول کے ذریعے طویل کھینچ دیا جاتا ہے، اور وہ ٹال مٹول کون سے ہوتے ہیں؟ وہ بہت سارے ٹال مٹول ہیں کہ لڑکا بہت سارے پیسے کمانے والا بن جائے، ذرا بزنس مین بن جائے، اور یہ بن جائے تو وہ بن جائے، تو پھر شادی کرتے۔ ایسا نہیں، اگر کفو مل جائے، جوڑ مل جائے، نکاح کر دینا چاہیے۔ اور اگر لڑکا نان نفقہ دینے پر قدرت رکھتا ہو اور اس کی خواہش بھی ہے تو پھر تو واجب ہو جائے گا کہ اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح بسا اوقات دیکھیں سنت ہے، نکاح واجب بھی ہے اور نکاح منع بھی ہے، حرام بھی ہے بعض صورتوں میں کہ اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس شخص کو اجازت ہے جو لڑکی کا نان نفقہ پورا کر سکتا ہے، اس کو رہنے کا گھر دے سکتا ہے، اس کو پہننے کے کپڑے دے سکتا ہے، اس کو کھانے پینے کی جو ضروریات ہے اس کی پوری کر سکتا ہے، تو شریعت اس کو کہے گی کہ نکاح کرو۔ اس میں بہت سارے لوازمات نہیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جو آسان ہے، جو آسان ہے۔ اور ہم نے کتنا مشکل کر دیا ہے؟ الاوان الحفیظ، شادی سے پہلے تیل مہندی، ٹول والے نے بھی بلانا جی، انہیں بھی پیسے دینے جی، جی اے مسحری بھی سجانی جی، اے گڈی فلانی ہونی چاہیے جی، اچھا جی۔ پھر وہ جو رسمیں چلتی ہیں منگنی وغیرہ کی، اس میں جوڑے لین دین، یہ سلسلے وہ سلسلے کر کرا کے جب نکاح کا وقت آتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو اب رولا پڑ جاتا ہے جی کہ جناب حق مہر کتنا؟ تو حق مہر دینا نہیں آتا لوگوں کو جی، جو شریعت محمدی وہ لکھ دیجئے۔ چلیے اتنے سارے بیٹھے، بتائیے شریعت محمدی کیا ہے؟ شاید کسی کو نہیں پتا ہوگا، میں بتاؤں گا بھی نہیں۔ پتا کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو کہوں گا شریعت محمدی حق مہر کی کیا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے علماء کے پاس آ جائیے۔ چلو اسی بہانے آپ سیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ آ جائیں، مجھے پتا ہے الحمدللہ، لیکن میں یہ بات تھوڑی سی وہ کہتے ہیں تھوڑا سا تجسس بھی رہنا چاہیے کہ شریعت محمدی میں حق مہر ہے کتنا، یہ تو ہمیں پتا ہو۔ نکاح کر رہے ہیں، شادیاں کری جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ کری جا رہے ہیں، لیکن حق مہر کتنا ہے یہ نہیں پتا، حق مہر کی قسمیں کون سی یہ نہیں پتا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سیکھنی، حقوق زوجین، یہ حق مہر کے مسائل اور طلاق کے مسائل۔ آپ کہیں گے جی چنگا بندہ بہ گیا جی، شادی دی گلاں ہو رہی ہیں تو طلاق دی گلاں کرنے لگ پے۔ جی ہاں، طلاق کے مسائل سیکھنا
लड़के पर, क्योंकि लड़का तलाक देने पर कुदरत रखता है, लड़की नहीं रखती। लड़की खुला मांग सकती है, लेकिन लड़का तलाक देता है। तो लड़के पर तलाक के मसाइल, यानी जो दुल्हा बनने जा रहा है, इस पर तलाक के मसाइल सीखना फर्ज है। क्या है? फर्ज है। डरे नहीं, बोलने कोई मसला नहीं। क्या है? फर्ज है। आप यकीन करें, यहां शादीशुदा अफराद भी बैठे होंगे, अगर तलाक के मसाइल पूछ लिए जाए, या मुसलमानों की बदकिस्मती बुरी हालत है, तो शायद तलाक के मसाइल नहीं आते नहीं। ये पहले सीखने की बात है। और मैं आपको इससे आगे की बात बताऊं, तलाक की भी अकसाम है, तलाक की भी किस्में। जी हां, इनमें से एक किस्म ऐसी है जिसे कहते हैं तलाक किनाया। ऐसे अल्फाज बंदा बोलता है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे चुका होता है और उसे पता ही नहीं होता। ये भी होता है। और वो अपनी बीवी के साथ बगैर शादी के अब रह रहा होता है, नहीं पता लोगों को। और अगर समझाने की बात की जाए, अब मौलविया ने बनाई है गल्ला। भाई मौलविया ने नहीं बनाई है, या का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। यह हमारी शरीयत है, इसको सीखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और अगर नहीं सीखेंगे तो फिर गुनाह में पड़ जाएंगे। इसको सीखना बड़ा जरूरी है। इससे ईमान की हिफाजत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को निस्फ ईमान करार दिया है। इससे ईमान महफूज होता है। और अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर ईमान खतरे में पड़ जाएगा। चलिए इसको एक मिसाल से समझते हैं कि अगर हमें किसी चीज का इल्म होगा तो बचेंगे ना। जब तलाक के मसाइल जानते होंगे तो फिर जबान पर ऐसी बात नहीं लाते। और आजकल कैफियत क्या है कि बात बात पर तलाकें दे दी जाती है, बात बात पर। यकीन करें, हैरान होता हूं मैं यार कि ये क्या बात है यार, मजाक बना लिया आजकल लोगों ने तलाक को। ये आपके जरिए, ये माशाल्लाह उस्मान भाई के जरिए, ये मैं उम्मत को एक पैगाम देना चाहता हूं। हम समझें इन चीजों को। गुस्से में आकर तलाक दे दी और फिर भागते हैं कि जी कोई हल बताएं। अब हल कहां से आएगा भाई, है? और बाद लोग वो फिर ऐसे लोगों के पास भी चले जाते हैं, वो कहते हैं जी 3 तलाकें 3 नहीं होती, 1 होती हैं। तो उनसे पूछा जाए, भाई अगर किसी को 3 थप्पड़ मारे जाए रख के, तो वो 3 हो गए कि 1 होगा? वो कहेगी 3 हो गए, तो फिर तलाकें भी 3 होती हैं। बात कर, तलाक के मसाइल जो है वो सीखना क्या है? फर्ज है। किस पर फर्ज है? जिसकी शादी होने लगी है, होनी है, करवानी है, उस पर। और जिसकी हो चुकी है उसको तो जल्दी सीखने चाहिए। और नहीं सीखे होते तो फिर मसाइल। अब चूंकि तलाक के मसाइल सीखे नहीं होते, इसलिए तलाकों की रेशो बढ़ती चली जा रही। अगर हम इस मसले को सीख लें तो मैं समझता हूं कि उम्मत मुहम्मदिया अक्लमंद तरीन है अल्लाह की रहमत से। और अल्लाह पाक फरमाता है कि समझाओ, समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। और मुसलमान समझते हैं, ऐसी बात है ही नहीं कि ना समझे। मैंने अभी ये कुछ अरसा पहले रबीउल अव्वल का मौसम पुरबहार गुजरा, तो हमने यहां पर मस्जिद कौन सी है जहां आप खतीब है, फैजान शेर मोहम्मद मस्जिद में मुझे बयान करने की सआदत मिली। और वहां पर मैंने तरगीब दिलाई, दाढ़ियां रखी, हुजूर की सुन्नत है, लोगों ने रखी भी होंगी। अच्छा, मैं अपनी दुकान पे बैठा था रायगढ़ में, तो एक शख्स आया और मुझे मिला आके ना, कहने लगा आपने मुझे पहचाना? मैं कहा नहीं यार मैंने तो नहीं पहचाना। कह रहा आप भाईकोट आए थे, आपने दाढ़ी रखवाई थी तो मैंने रख ली थी। यानी समझाया जाए तो मुसलमान समझता है, ऐसा नहीं है। और हम ये थोड़ी सी अपनी ज़हनी सोच बना के बैठे कि जेड़ा जिथे लगा उसको लगा रहने दो। क्यों लगा रहने दो? हम वो उम्मत हैं जो नेकी की दावत देने वाले हैं, दाई हैं, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने वाले, लोगों को नेकी की दावत देने वाले, बुराई से मना करने वाले। और अगर मुसलमान मसाइल को सीख ले, लेन देन के मामलात को सीख ले, हकूक के ज़ौजैन को सीख ले, मियाँ बीवी के हुकूक सीख ले, माँ बाप के हुकूक सीख ले, बच्चों के हुकूक सीख ले, पड़ोसियों के हुकूक सीख ले, तो यकीन करें कि हमारा मुआशरा तो वैसे ही जन्नत बन जाएगा। यकीन करें, इतना दीन इस्लाम ने हमें डिसिप्लिन सिखाया है कि कमाल कर दिया। बच्चे के हुकूक, बीवी के हुकूक, माँ के हुकूक, बहन के हुकूक, हर चीज के हुकूक बयान फरमा दिए। लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं, क्योंकि सीखेंगे तो अमल करना पड़ेगा। भाई नहीं सीखा तो भी अमल करना पड़ेगा, तो सीख लेना बेहतर है। चलिए मैं एक मिसाल से आपको समझाने लगा था कि जब इंसान को गुनाह की मार्फत नसीब हो जाती, पहचान, तो वो फिर क्या करता है? उस चीज से बचता है। इसको मिसाल से समझते हैं। ये एक वायर है, इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा, इसे कहते हैं प्लास्टिक कोटेड वायर। इसमें करंट नहीं है,
लेकिन एक वायर ऐसी है जिसमें करंट है, अगर वो वायर जमीन पर पड़ी हो और उसकी कोटिंग जगह जगह से टूटी हो और आपको पता है कि यहां से करंट लगेगा, आप हाथ लगाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इल्म है, आपको पता है, मार्फत है, इसलिए आप बचेंगे। और अगर एक छोटा सा बच्चा रेंगता रेंगता उस वायर के, उस तार के करीब आए और पकड़ने की कोशिश करे, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? चुप करके बैठे रहेंगे? नहीं, क्या करेंगे? बचाएंगे। क्यों बचाएंगे? क्योंकि इसको करंट लग जाएगा, ये इसकी जान भी जा सकती है करंट लगने से। बचाएंगे ना? बचाएंगे ना? तो मैं भी आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, समझे बात को? मैं क्या कर रहा हूं? आपको गुनाह से बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक गुनाह ऐसा है कि जो मुआशरे में पाया जा रहा है और लोगों को इसकी पहचान नहीं, वो जरा सीख लें ताकि गुनाह से बच जाए। तो यूं जब गुनाह की पहचान नसीब होती है तो फिर बंदा गुनाह से बचता है, और जब तक गुनाह की मार्फत नहीं होती बंदा गुनाह से बचता नहीं। तो जब बंदा गुनाह से बचता है, नेकियां करता है, उसका बातिन पाक होता है, फिर उसे अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, उसका नमाज में दिल लग जाता है, उसका कुरान में दिल लग जाता है, उसका दुरूद पाक में दिल लग जाता है, फिर वो गुनाह नहीं करता, वो बचता है कि नहीं भाई गुनाह नहीं करना ना, नहीं करना। यकीन करें, जैसे हमारे मस्जिदों के आइम्मा है ना, ये नेक लोग होते हैं अल्लाह की रहमत से, इनको दुनियादारी से कोई ऐसी गर्ज होती नहीं, थोड़ी सी तनख्वाह मिल रही होती है और उसी में अल्लाह की रहमत से गुजारा कर रहे होते हैं, कभी शिकवा नहीं, कभी शिकायत नहीं। और कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी इमाम मस्जिद में थोड़ी तनख्वाह की वजह से कोई धरना कर दिया हो, कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी इमाम मस्जिद ने खुदकुशी कर ली हो, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उलमा है, नेक लोग हैं, अल्लाह की मार्फत रखते हैं, पहचान रखते हैं कि खुदकुशी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, अल्लाह की नाफरमानी का काम है, ये नहीं करते, और बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये होती है मार्फत और पहचान के जिसके जरिए इंसान गुनाहों से बचता है। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि ये मसाइल जो है ना, ये निकाह से पहले सीखने वाले होते हैं जो कि हम नहीं सीख पाते। चलिए, नहीं सीखा तो भी परेशान ना हो कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का दीनी माहौल मौजूद है जो हमें इल्म दीन की रोशनी से आरास्ता और पैरास्ता करता है, समझाता है। आज मैं अगर आपके सामने बैठा हूं तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत है, पहले तो नहीं था ऐसा, तो सीखा और आज बोलने की अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये तौफीक नसीब हो रही है। अब भी सीखिए, और सीखने के लिए क्या करेंगे? उलमा के पास आ जाए कि जनाब कोई एहो जी तलाक भी होती है कि जिन्हें छोर लफ्ज देने से तलाक हो जाती है। मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन इसलिए नहीं बता रहा ताकि रुजू आपका उलमा की तरफ हो जाए। चले एक दो जुमले बता देता हूं, बाकी फिर आप सीख लीजिएगा। मैं आपको मोटे मोटे जो ज्यादा बोले जाते हैं, गुस्से में बंदा अपनी बीवी को कह देता है चल दी बन छो, कहते नहीं कहते? मैं तुम फर्क की तरह कहते नहीं कहते? कहते हैं ना, ये तलाक है। कईयों ने ऐसे जुमले अपनी बीवियों को कहे होंगे। आप उलमा से रुजू कर लीजिएगा कि इसका हल क्या है। झंझोड़ दिया ना पकड़ के इस बात में। इसके अलावा बहुत सारे अल्फाज हैं, सारे बयान नहीं किए जा सकते एक नशिस्त में। तो बहुत नाजुक मराहिल से इंसान गुजर रहा होता है, और जब सीखता है तो फिर हलाल और हराम की तमीज पता चल जाती है, फिर बचता है। इसी तरह रिस्क का मामला है कि माल कमाना कैसे है, खर्च कैसे करना है, नहीं पता मुसलमान। लेन देन के मामले का नहीं पता। यकीन करें, अगर किसी से ले लिया तो देने की नीयत नहीं होती और लोगों को रुसवा कर करके देते हैं। ये मुसलमानों की हालत हो चुकी। तो हमें अपने आप को संभालना है, संवारना है, गुनाहों से बचना है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी वाले काम नहीं करने, नेकियां करनी है, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना है, कुरान पढ़ना है, नमाजें पढ़नी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना है, रब को राजी करना है। फिर देखिए कि दुनिया भी आपकी संवरेगी और आखिरत में भी बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से पार होगा, यकीन कीजिए। और आजकल चूंकि शादी का टॉपिक है और शादी में जो रिश्ते की तलाश होती है, एक तो मैंने आपको अर्ज किया कि नाम नफका
ضروری ہے। اس شخص پہ واجب ہو جائے گا نان نفقہ دے سکتا ہے تو اس کا نکاح کیا جائے۔ ایک شخص ایسا ہے جو نان نفقہ نہیں دے سکتا یا اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ حقوق زوجین پورے کر سکے، تو پھر اس کا نکاح کرنا حرام ہے، اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ بعض اوقات ماں باپ لولے لنگڑے اور پاگل قسم کے اور پتہ نہیں شدائی قسم کے اور بالکل فضول قسم کے لڑکے وہ نکاح کر دیتے ہیں کہ جی بیاہ ہو جائے گا نا تو پھر سدھر جائے گا۔ بھائی جو آپ کے ساتھ رہ کے ہے نا 20 سال 25 سال نہیں سدھرا، آپ کیسے کہہ سکتے کہ وہ شادی کے بعد سدھر جائے گا؟ کیا گارنٹی آپ کے پاس؟ اور اسی وجہ سے کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو چکی، وہ شرابی ہوتے ہیں، وہ جواری ہوتے ہیں، وہ نشئی ہوتے ہیں اور شادیاں کر دی جاتی ہیں، پردے ڈالے جاتے ہیں۔ نہیں ساڈا منڈا تے جناب آب زمزم کے نال ہوتا ہے، یہ تو کر دے کچھ نہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی حرکتیں کیا تھی، اور ماں باپ ظلم کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کی بچیاں وہ لے کے آتے ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو آپ بند پا دیے ان چیزوں کے ساتھ، سمجھائیے لوگوں کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں کی کیٹیگری کیسی ہے، اور اگر کوئی پوچھے یار دستے تک دیے پر ساڈا ذرا تعلق ہے تو چلو تسی ساڈی گل نہ کر، بھائی بتائیں، کھلی باتیں بتائیں، جو بتانے والی باتیں وہ نہیں بتاتے، وہ چھپاتے ہیں، تو یوں رشتے بھی خراب ہوتے دیکھے جاتے ہیں۔ حساس معاملہ ہے نکاح جو ہے، یہ 3 جملے کہہ کر نکاح ہو جاتا ہے اور 3 جملے کہہ کے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ یہ مضبوط بھی بہت ہے اور کمزور بھی بہت ہے، تو اس کی حفاظت کرنی بھی بڑی ضروری ہے۔ یہ بڑا نازک رشتہ ہے اور بڑا مضبوط رشتہ ہے، دونوں طرح سے ہے، تو اس کی حفاظت کرنی بھی بڑی ضروری ہے۔ تو جب آپ علم دین سیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے نکاح کو نبھایا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کریں گے علم دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ، کریں گے کوشش۔ ویسے جو میں ٹاپک یہ عموماً میں معذرت چاہتا ہوں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے، ویسے شادی بیاہ کے موضوع پہ میں عموماً یہی ٹاپک رکھتا ہوں، سمجھانے والا، کہ لوگ سمجھیں، اور ایسا نہیں کہ لوگ پسند نہیں کرتے، اللہ کی رحمت ہے۔ یہ پچھلے مہینے بھی ایک شادی کی محفل میں نے ٹاپک لیا اور مجھے بعد میں لوگ ملے کہہ رہے جی مولوی صاحب سامتے ہیں گلا کسی نے دسیاں ہی نہیں، تو میں کہا جی تسی پوچھیاں کیوں نہیں؟ قصوروار بتانے والا نہیں ہے، ہم قصوروار بناتے علماء کے معذرت کے ساتھ کہ جی مولوی نے نہیں دسیا، مولوی نے نہیں دسیا۔ اچھا، جو یہ جمعے کا آدھے گھنٹے کا پونے گھنٹے کا خطاب کرتے ہیں حضرت مولانا، جو بھی جہاں پر بیٹھ کر آپ پورا سنتے ہیں، کبھی سننے کی زحمت نہیں کی ہوگی سب نے، اس وقت آتے ہیں جب اللہ اکبر اور وضو کرنے والوں کے ڈھیر لگا ہوتا ہے پیچھے، تو سیکھا آپ نے کیا؟ موقع تو تھا سیکھنے کا۔ تو یوں پتا چلے گا کہ قصوروار یہ نہیں، ہم بھی ہیں کہیں نہ کہیں، سکھانے والے موجود تھے، سیکھنے والے نہیں آئے۔ چلیے اور آسان کر دیتے ہیں، اگر آپ شادی کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، علماء سے سیکھی کتابیں پڑھ لیجئے، اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو دعوت اسلامی نے اتنی سہولتیں کر دی ہیں کہ مدینہ وہ کیا ہے، آن لائن داخلہ لیجئے اپنے موبائل کے ذریعے www.dawatislami.net، یہاں پر فیضان اسلامک آن لائن اکیڈمی موجود ہے، یہاں پر کورس کروائے جاتے ہیں، شادی کورس کیجئے، نکاح کورس کیجئے، سیکھیے، حج کورس کروایا جاتا ہے، عمرہ کورس کروایا جاتا ہے، تجارت کورس کروایا جاتا ہے، بالکل بہت سارے کورسز، 40 سے زیادہ کورسز دعوت اسلامی نے ڈیزائن کیے ہیں جو امت کی اصلاح کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو الحمدللہ عز و جل آن لائن کلاسز کے ذریعے حافظ بن چکے ہیں اور عالم دین بھی بن چکے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کورسز کرنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ 1 ہفتے کا کورس ہے، روزانہ کی آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، جستجو ہوگی تو اللہ کی رحمت سے سیکھ لیں گے، اور جس کے اندر جستجو نہ ہوئی تو پھر اس کا کوئی حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کوشش کریں گے علم دین سیکھنے کی، سبحان اللہ، اچھی نیت کا اظہار کریں۔ تو ماشاءاللہ اس مسجد کے امام صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے مولانا ایوب بھائی بھی موجود ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے پڑھے عالم دین ہیں، بالکل رابطہ کیجئے، اللہ کی رحمت سے عقل کے دریچے کھلیں گے، سوال کرے علماء سے، اور فرمایا گیا کہ سوال علم کی چابی ہے۔ ہم سوال نہیں کرتے، جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور شادی کے معاملے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ نیک رشتے کی تلاش کیا کریں، مالدار ڈھونڈتے، زیادہ مال کی حاجت نہیں ہے،
मालदार ढूंढते, मालदार होना चाहिए। और बच्ची जो होती है ना, बेटी, कहते कि बेटी सबकी सांझी होती है। ये साढ़े पंजाबियों च जुमला बोला जाता है, बच्चियां सारे दी सांझियां होंदियां, है ना, ये अच्छा जुमला है। अब बच्ची और बच्ची वालों पर शरीयत ने कोई बोझ नहीं रखा, कोई जिम्मेदारी अगर रखी है तो लड़के की रखी है। अगर निकाह के वक्त इसके जिम्मे किया गया है हक महर, तो लड़के के जिम्मे है, लड़की के जिम्मे तो है ही नहीं। और इसके बाद शबे ज़फ़ाफ यानी शादी की रात के बाद वलीमा किसके जिम्मे है, ये आप बताएं जी भाई। बोले नहीं पता, कौन कराता है? लड़के वाले नहीं कराते, इन्हीं के जिम्मे है ना, तो बारात तो है ही नहीं। सिंपल निकाह है, सुन्नत निकाह है। और फरमाया गया कि आसान निकाह जितना होगा उतना बरकत वाला होगा। और हमने इसको रस्म और रिवाज के इर्द लपेट कर इतना मुश्किल कर दिया है, अलवान अल हफीज। तो कोशिश करें मेरे नौजवान जो बैठे हैं यहाँ, इनमें से अगर कोई नियत कर सकता है तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह जब हम अपनी शादी करवाएंगे, निकाह करेंगे, तो आसान निकाह करेंगे, लड़की वालों पर बोझ नहीं बनेंगे, उनसे जहेज की डिमांड नहीं करेंगे, उनसे गलत रस्मों की डिमांड नहीं करेंगे, आसान करेंगे ताकि औरों के रास्ते भी आसान हो जाए। क्योंकि एक घर में कई कई बेटियां बैठी, यकीन कीजिए, और बच्चियों के माँ बाप परेशान, इतना पैसा लाए कहां से इस गुर्बत के दौर में। और अगर नौजवान नियत करके उठ जाए कि इंशाअल्लाह मैं, है कि नहीं, मुझे देख के माशाअल्लाह मजा आ गया, दस्तबूसी करके मजा आ गया, है ना। बाल पीर, मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, पीर कहते हुए उनको शर्म आती है, ना उनकी दाढ़ी पूरी होती है, ना कोई मामा होता है, ना कुछ और होता है, बस बने होते हैं और हम भी लगे उनके पीछे बार क्या। तो ये मैं आपको अर्ज कर रहा था कि मेरे जो नौजवान यहाँ पर बैठे, नौजवान जो है ना, ये तकदीरें पलट देते हैं किसी भी चीज की। जंग में कौन जाते हैं? नौजवान। इनकलाब कौन लेके आते हैं? नौजवान। तो नौजवान जिस चीज को ले लेते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब आ जाता है। आप देखिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आपको नौजवान ज्यादा मिलेंगे जिन्होंने दाढ़ियां रखी, जिन्होंने इमामे सजाए। मैं भी 18-19 साल की उम्र में था जब मैंने दाढ़ी और इमामा सजा लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर ये नौजवान जो बैठे हैं, ये अगर नियत करें कि हम इंशाअल्लाहुल करीम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस लाडली प्यारी उम्मत पर से बोझ को हटाएंगे और आसान निकाह करेंगे, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब हो। नियत बनती हो किसी की तो वो गए जी इंशाअल्लाह है। अगर जहेज मिले भी होगा, नहीं चाहिए, अपने को रखो, ऐसी बनाओगे, आप बनाओगे, खुददार बनना है। क्यों ऐसे करते किसी के साथ? मेरे अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब ने भी अपने बच्चों और बच्चियों के निकाह किए, शादियां की, और आसान निकाह किए, कोई डिमांड नहीं की, किसी से कोई डिमांड नहीं की। और जब आपने अपने बच्चों के वलीमे किए ना, मस्जिद में निकाह किया, देखिए आजकल के दौर में मुमकिन है, पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है। असल में हम रस्म और रिवाज में जुड़ गए कि लोग की क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, भाई राजी नहीं होते लोग, जो मर्जी कर लो आप, फिर भी बातें करते। तो आसान निकाह किए। और जब वलीमे के दिन आए तो आपने पता क्या खिलाया? इतने बड़े पीर साहब ने अपने बेटे के वलीमे में पता क्या खिलाया था? दाल चावल। जी हाँ, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, खुश होकर खा के गए। दाल चावल खिलाए थे, खिलाए दाल चावल, क्या हर्ज है। लेकिन हम सोचते बरादरी कुछ भी नहीं यार, ये सारे मान ही जाते हैं, हुजूर के तरीके पर चले, हम सादा निकाह किया इंशाअल्लाह, खैर ही खैर। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कम होगी ना आवाज? अब अंदर अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा है कि कैसे होगा, कैसे होगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अल्लाह आपके लिए असबाब कर देगा, आसानियां कर देगा। कोशिश करेंगे हमने कोशिश कर दी है ना। अम्मी अब्बू का जहन बनाना है। अम्मी अब्बू तो कहेंगे जी वो फलाना ये लेके आई थी, तो फलानी ये लेके आई थी, और बस रस्में यार, यकीन करें जितना इस पटारे को खोलते चले जाए ना, दुख के अलावा निकलता कुछ नहीं है। लाखों रुपए का जहेज भी लाने वाली बच्ची को ताने ही मिलते देखे। कपड़े नहीं सही, बर्तन नहीं सही, कहते चंगे तो अपनी धी नूं दिते सी। तो भाई उस पर लाना को फर्ज वाजिब था ही नहीं, बोझ बनाया आपने, गलत काम किया आपने। आपके बेटे के जिम्मे है उसका नाम नफ्का पूरा करे, बच्ची के जिम्मे तो है ही नहीं। ये तो ले ही है, तो चलो शुक्र करो आपके घर की रौनक बन गई है। तो हम इंशाअल्लाह बोझ को हटाएंगे।
जोर तो लगाओ यार। क्या पता आपका इंशाअल्लाह कहना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और आपको सादा निकाह की तौफीक मिल जाए। क्या फर्क क्या पड़ेगा? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा निकाह नहीं किया? अपनी बेटी का सादा निकाह नहीं किया? अब यहां पर एक बात और काबिल तवज्जो आपको अर्ज करता चलूं। बाज लोग कहते हैं देखिए अपनी हैसियत के मुताबिक डिमांड ना कीजिए। मैंने आपको क्या कहा? डिमांड नहीं करनी। अगर खुद से वो सोने के पलंग भी दे देते तो अपनी बेटी को दिया, कोई हर्ज नहीं, देना जायज है। हाँ, बाज लोग कहते हैं जी जहेज दी लानत, तौबा नाउज़ बिल्लाह, जहेज तो सुन्नत है। मेरे आका ने दिया अपनी शहजादी को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। आप भी दो चार जोड़े जो भी देना चाहे, देने में हर्ज नहीं। डिमांड ना कीजिए। मैं जो आपको तवज्जो दिला, डिमांड ना कीजिए। अच्छा जी कौन सा, अब पूछा जाता है कौन सा बेड लेना? वो डीको पेंट वाला लेना जी। अच्छा जी, कहां से डीको पेंट? कभी देखा अपने खानदान में कोई डीको पेंट आया हो? सुनी सुनाई बात डीको पेंट ना करें ऐसे। हमने इंशाअल्लाह हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर के तरीके पे चलना है और इंशाअल्लाह सादा निकाह करेंगे। करेंगे भी, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और नेक रिश्ता तलाश करिए, किया करे नेक रिश्ता। वो एक वाकया आपने सुना हुआ है कि एक नहर में सेब जा रहा था और किसी बुजुर्ग ने खाया था। किस किस ने सुना होगा? हाँ जी, चंद लोगों ने सुना। चलो मैं आपको सुनाता हूं, बच्चे भी तवज्जो कीजिएगा। एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था अबू सालेह। नौजवान थे, जवान।